Hello my dear students, my name is Jigjot Singh. Once again I welcome you all to my YouTube channel Jigjot Tutorial Physics, and this is a class for +1 science students. Okay beta, this time we are going to start for our next topic, uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion means the velocity of the body keeps on increasing, and if it is increasing with a fixed amount in every time, same time interval, therefore the body is under a uniformly accelerated motion. And if it is moving not properly, means not in a fixed time interval, the velocity is changing, therefore the body is under a non-uniform motion. बात समझ आई क्या कह रहा हूं मैं इसमें देखिए बेटा, अगर तो बॉडी जो है वो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी में फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर, उसमें जो इंक्रीज आ रहा है वेलोसिटी में वो फिक्स्ड है, देयरफॉर द बॉडी इज अंडर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. एंड इफ the speed or the velocity of the body is not increased with a fixed amount in a fixed time interval, therefore the body is under a non-uniformly accelerated motion. Okay, we are taking an example. So first of all, before going ahead, we will have to go through with the formula of acceleration. The formula of acceleration is velocity upon time. It is similarly like the velocity which we read previously, that velocity equals to final displacement minus initial displacement upon final time minus initial time. Okay beta ji, final displacement minus initial displacement upon final time minus initial time, it is velocity. And for acceleration we are having velocity upon time means final velocity minus initial velocity upon final time means initial time. There, final time, initial time means if a body is here, then it comes to here, and its starting point is this. Okay, from here it will come here, and then it will move to this position here. Also here the final velocity and the time it is having at this position, it is final time, and here the initial velocity. Okay, and the time it is having here, it is initial time. Okay, so in this time interval, its acceleration we will have to calculate. For that, the final time, final velocity minus initial velocity upon final time minus initial time, and this we can write. इसे हम तभी लिख सकते हैं अगर बेटा हमें इसका फॉर्मूला पता होगा. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, सो वेलोसिटी क्या क्या लिखेंगे वेलोसिटी में? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. Okay, so this is the formula for acceleration, and it can be valid on uniformly accelerated motion and also on non-uniformly accelerated motion. And if the acceleration comes same throughout its motion, therefore it is under the uniformly accelerated motion. And if the acceleration not comes same, therefore the body is under a non-uniform acceleration motion. आपको बात समझ आई? नहीं आई तो यहां पर आइए एग्जाम्पल में. We are taking an example that at 21st second the body is having a velocity 20 meter per second. Okay, 20 meter per second. At 22nd its velocity is this much. 23rd पे इतनी है, 24th पे इतनी है. Okay, so therefore अब हम हर सेकेंड, उन्होंने बोला ना कि फिक्स टाइम इंटरवल फिक्स चाहिए, हमारी मर्जी है हम वो जो टाइम इंटरवल है हम कितनी रख रहे हैं. अगर 2 सेकंड का रखना तो 2 सेकंड का रखो, 1 सेकंड का रखना तो 1 सेकंड का रखो, 4 का रखना 4 का रखो, 5 का रखना 5 का रखो, हमारे ऊपर डिपेंड है बेटा जी सब कुछ. सो हमने यहां पर क्या रखा? 1 सेकंड का. ओके, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे और हमको समझना अच्छा रहे. सो देयरफॉर क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगी? मैं एक ही फाइंड कर रहा हूं, कब से कब तक? 21st से लेकर 22nd तक. सो देयरफॉर व्हाइल मूविंग फ्रॉम 21st second to 22nd second means the body is under motion. और जब वो 21वें सेकंड से लेकर 22वें सेकंड तक गई, तो अगर उसमें एक्सेलरेशन आई, एक्सेलरेशन कब आती है? जब हम एक्सेलरेटर के ऊपर पैर रखते हैं, देन बॉडी विल मूव moving speedy. Okay, and if
द बॉडी इज अंडर अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स फिर थोड़ी ब्रेक लगी, फिर स्पीड, फिर ब्रेक लगाई, फिर स्पीड। इसका मतलब कभी वो रेस दे रहा है, कभी ब्रेक लगा रहा है। इसका मतलब वो लगातार यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही, कभी वो ब्रेक लगा रहा है, कभी वो धीमी हो रही है, कभी फिर से फास्ट, फिर से धीमी, फिर से फास्ट। देयरफॉर वो लगातार जो मोशन है वो इंक्रीज डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, सो यहां पर क्या होगा बेटा जी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल क्या है 25, इनिशियल क्या है 20। टाइम कौन सा है, यहां पर टाइम था 20 सेकंड, यहां पर 21 है, तो 20 सेकंड माइनस 21, सो 22 माइनस 21 1 आ गया, और क्या आई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी तो आपको फॉर्मूला पता है ना बेटा जी, हमें पता है ना वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी यहां पर रखा तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट का मीटर था और टाइम एक टाइम साथ और आ गया, तो टाइम क्या हो गया स्क्वायर हो गया। सो यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट ये लग गया हमारे पास, यूनिट आंसर क्या आया हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिमिलरली आगे भी हम करते जाएंगे तो क्या होगा 30 माइनस 25 सेकंड, तो ये सेम ही रहा, तो 5 आ गया, नेक्स्ट में भी 5 आ गया। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या जा रही है यूनिफॉर्म सेम जा रही है, सो देयरफॉर इट इज अंडर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, 21 पे क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल हमने लिखी यहाँ पर 20 सेकंड पे है 23, सो 20 सेकंड पे वहां पर वेलोसिटी क्या है बेटा 23 मीटर पर सेकंड। सो यहां पर आ गया फाइनल 23, इनिशियल क्या है 20, सो 20 अपॉन टाइम क्या हुआ 20 सेकंड माइनस 21। सो टाइम इंटरवल यहां पर भी हमने क्या रखा हुआ एक ही सेकंड रखा है, सो 1 आ गया। सो कितना आंसर आया 3 मीटर पर सेकंड। सो इसका मतलब जब वो 21वें सेकंड वाइल मूविंग, जब वो 21वें सेकंड से 22nd सेकंड पे जा रहा है, तब उसकी वेलोसिटी के जो एक्सेलरेशन उसमें आ रही है, जब वो तेजी पकड़ रही है बॉडी, तब उसकी एक्सेलरेशन बेटा कितनी आ रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और जब वो 22 में से लेकर 23वें सेकंड पे जा रहा है, तब उस पर वेलोसिटी की एक्सेलरेशन क्या आ रही है 25 माइनस 23 अपॉन सेकंड को वेट 1 ही है, तो क्या आया बेटा जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर यहां पर एक्सेलरेशन क्या थी 3 मीटर पर सेकंड, और उससे अगले वाले सेकंड में एक्सेलरेशन क्या आई इतनी, उससे अगले वाले में क्या हुआ 5। इसका मतलब तब उसने एक्सेलरेटर के ऊपर और जोर से पैर रख दिया, बॉडी और तेज हो गई। सो कैसे हुई 3 समझे बात। सो ये थी बेटा कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, हमने ये पहले पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड सभी स्पीड्स की एवरेज, एवरेज वेलोसिटी मींस सभी वेलोसिटीज की एवरेज। मोशन चैप्टर का नेम खुद स्पेसिफाई कर रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो देयरफॉर स्ट्रेट लाइन पे अगर हम जा रहे हैं तो उसकी एवरेज निकालनी, अगर स्पीड है तो स्पीड की निकालनी, और अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी की एवरेज निकालनी। सो कैसे किया जा रहा है, कैसे हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझे। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपको वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस पता चल गया है तो आप इस बात को भी कर सकते हो। इस टॉपिक, ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत सा क्लियर सा होगा। तो क्या है इसमें एवरेज स्पीड टोटल पाथ मूव्ड मींस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई अपॉन टोटल टाइम टेकन। एग्जांपल ले रहे हैं ताकि बात और अच्छे समझ लग सके। आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस बेटा है 3 किलोमीटर, and while your bus moving from your home to school, it takes 10 minutes to cover this distance, that is 3 kilometer. Okay, and while moving back from school to your home, the distance remains same, that is 3 kilometer, and it takes time 20 minutes. ड्यू टू हो सकता है बच्चों के साथ बातें करने लग पड़े हो ड्राइवर, तो देयरफॉर वो तो 10 मिनट्स तक थोड़ी एक्स्ट्रा लग गए। ठीक है, तो बेटा जाते वक्त उन्होंने टाइम लिया बेटा 10 मिनट्स जाते वक्त, और आते वक्त टाइम दिया 20 मिनट्स, और देयरफॉर टोटल डिस्टेंस क्या हुआ टोटल पाथ मूव हुआ जाते और आते वक्त 3 किलोमीटर जाते के वक्त और 3 किलोमीटर आते वक्त। देयरफॉर टाइम टोटल डिस्टेंस क्या होगा 3 + 3 6 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम क्या हुआ 10 मिनट्स जाते वक्त और आते वक्त भी 20 मिनट्स। देयरफॉर टोटल टाइम इज 30 मिनट्स। सो एवरेज स्पीड क्या हुई
टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो देयरफॉर क्या हुआ बेटा, 6 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना हुआ, 30 मिनट्स मींस 1.5 आवर। ओके, सो सिंपली हाफ आवर। ओके, सो बेटा टाइम डिस्टेंस हुआ हमारे पास 6 किलोमीटर और टाइम कितना हुआ, 30 मिनट्स मींस हाफ आवर। ओके, सो यहां पर फिल किया तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मींस स्पीड, एक्चुअल स्पीड एट अ वेरी फाइन सेकंड। किसी भी सेकंड के ऊपर अगर हमने स्पीड जो है उसको फाइंड करना है, जाते वक्त उन्होंने लिया 10 मिनट्स लिए, मींस आपका जो स्टार्टिंग टाइम था यहां से स्कूल को अगर बस गई है वो सुबह 8 AM पे स्टार्ट हुई है जाते वक्त और पहुंची है वो 8:10 AM पे। ओके, सो वो स्पीड फाइंड करनी किस, कौन से टाइम पे, ये वाला 8 बजकर और 4 मिनट के ऊपर। सो इस टाइम के ऊपर उसकी स्पीड क्या होगी, वो क्या होगी, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट सेकेंड, वो वाला पर्टिकुलर फाइनेस्ट सेकेंड पे ऊपर। ठीक है, सो बेटा हमारे पास ये हो गया। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो एवरेज स्पीड हमारी निकली है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर उसकी वो जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो चाहे इससे ज्यादा और कम हो सकती है। ओके, सो देयरफॉर और एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट व्हाइल मूविंग फ्रॉम योर होम टू स्कूल एंड देन कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल टू योर होम, the total distance, the total displacement will be 3 kilometer while moving that side and 3 kilometer while moving that side. Therefore, the displacement is 0 because the direction displacement is having a direction. While moving this side, it is having a 3 kilometer, and while moving this side, it is also having a 3 kilometer. But the direction is opposite and the magnitude is same. So therefore, 3 kilometer while moving from home to school and while moving from school to home, the distance is again 3 kilometer and it is having a negative sign because its direction is opposite to that displacement. Therefore, a total displacement is 0 kilometer and total time taken is 10 plus 20, 30 minutes. So the average velocity will be displacement upon time. Displacement is 0 kilometer. Time is 1.5. Sorry, simple half hour. So therefore, हमारे पास बेटा velocity, average velocity क्या आ गई जी, 0 किलोमीटर पर आवर। सो इसमें भी अगर बोला जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वो पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर। सो देयरफॉर बात समझ आई बेटा जी। अगर तो बॉडी जो है, ये वाली जो बॉडी, हम इसकी बात कर रहा हूं, अगर एवरेज स्पीड की, अगर बॉडी जो है वो जा रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, लगातार वो कांस्टेंट स्पीड पे ही जा रही है, उसकी स्पीड जो है वो वही रही जाते वक्त। ओके, और आते वक्त भी अगर वही स्पीड रही, मींस 10 मिनट्स जाते वक्त लिए और आते वक्त भी 10 मिनट्स लिए। सो देयरफॉर बेटा हर सेकंड के ऊपर और मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रही। सो देयरफॉर हम सच केसेस के ऊपर अगर जाते वक्त यहां का टाइम और यहां का टाइम थोड़ा इग्नोर कर दूं, स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लग गया बस को, सो देयरफॉर अगर जाते वक्त और आते वक्त दोनों में 10 मिनट्स लिए और बॉडी जो बस है वो ट्रेवल कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, देयरफॉर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके बराबर होगी, एवरेज स्पीड के। ठीक है ना, अगर अब ये वाला मैं थोड़ा टाइम जो थोड़ा सा ये जो टाइम है इसको मैं इग्नोर कर दूं, देयरफॉर अभी यहां से लेकर यहां तक जाते वक्त थोड़ा सा उसने टाइम लिया अपनी स्पीड को पकड़ने में बस ने, देयरफॉर बाद में तो उसने स्पीड पकड़ ली। देयरफॉर अगर उसकी उसका जो मीटर है, जो स्पीडोमीटर है, उसके ऊपर आता होगा ना बेटा, वो क्या आता है, वो हर सेकंड के ऊपर वो जो निडल है वो ऊपर नीचे होती है। देयरफॉर क्या है, वो मेजरमेंट दे रहा है स्पीडोमीटर, वो क्या है, वो है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर जो डायरेक्शन है उसकी वो अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जा रही है तो देयरफॉर वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज क्या हुआ, टोटल टाइम, अगर स्पीड की बात करें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और अगर वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझे बात, अभी ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं, क्लियर हो गई हैं। देन हम जा रहे हैं अभी कहां पर, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और बाद में पढ़ते हैं।
बेटा नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, चैप्टर है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, बट उसे पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है इसमें। प्रीवियसली हमने पढ़ा था बेटा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर फाइनल वाली जो वेलोसिटी है मींस अ बॉडी इज मूविंग, ठीक है, फाइनल वाली जो वेलोसिटी होगी जो आगे चलकर आएगी वो वाली वेलोसिटी मींस अ बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। अभी यहां से जाते वक्त यहां पर उसकी वेलोसिटी होगी अप्रोक्सीमेटली हम मान लें कि 20 मीटर पर सेकंड और आगे जाकर हो जाए 40 मीटर पर सेकंड, मींस वेलोसिटी इंक्रीज्ड, देयरफॉर एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर वो वाली जो बॉडी जो आगे जाकर आगे वाले सेकंड पे जाकर अगर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, 20 है आगे जाकर 10 हो जाए, देन रिटार्डेशन। कैसे होगा, रिटार्डेशन के लिए नेगेटिव साइन लगता है, कैसे होगा समझते हैं। एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं। और रिटार्डेशन का भी फॉर्मूला सेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बातें तो सेम ही है, बट एक में स्पीड गेन हो रही है और एक में वेलोसिटी गेन हो रही है और एक में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्या होगा बेटा, इसमें एक्सेलरेशन में हम ये बात क्लियर कर चुके हैं दैट इन एक्सेलरेशन द फाइनल वेलोसिटी इज मच मोर ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, ओके, एंड इन रिटार्डेशन द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, देयरफॉर we are taking the example that at time t equals to 0 the velocity of the body is 0. After these 2 seconds, at time t equals to 2 seconds the velocity will become 20 meter per second, and at time t equals to 4 seconds the velocity will become 40 meter per second. So therefore if we are taking this time interval, that in that time interval the time difference is 4 minus 2 meter per 2 seconds, okay. So therefore here the acceleration will become, and the velocity change is 40 minus 20. So therefore what will be the answer? The answer is 20 meter per second, sorry 20 meter per second, that is the velocity, and the time is 2. So therefore यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या देगा बेटा जी, टाइम इज सेकंड, so सेकंड क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड। से इसका मतलब बॉडी गेन हो रही है, एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी गेन हो रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही है। और यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, सेम यही मोशन है, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां तक तो क्या हो रहा है, यहां पर भी एक्सेलरेशन 0 थी 20 हो गई, टाइम सेकंड 2 सेकंड का था, इससे आगे जाकर फिर से गेन होगी, हाँ जी एक्सेलरेशन। यहां पर क्या हुआ, अगले 2 सेकंड में जो बॉडी की स्पीड थी वो क्या होगी, 40 से 30, वेलोसिटी थी, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस के लिए ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, देयरफॉर इसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। तो देयरफॉर यहां पर बेटा एक्सेलरेशन होगी कि रिटार्डेशन होगी, ये हम चेक करेंगे, हम फॉर्मूला पे एक्सेलरेशन का ही लगाएंगे। सो वो क्या होगा, फाइनल क्या हुई, ये वाली फाइनल होगी, ये इनिशियल होगी, इस टाइम इंटरवल के लिए। तो देयरफॉर यहां क्या होगा, 30 minus 40 अपॉन 6 minus 4, देयरफॉर द आंसर विल बिकम minus 10 upon 2, therefore minus 5 meter per second square. Here the negative sign shows that this is not acceleration, this is deceleration, or we may say that retardation. These two are the names for this acceleration, but here in this we are having a negative acceleration, so therefore we can say it as deceleration and or retardation. Okay beta ji, are you familiar with acceleration and deceleration? Okay, so next beta हम जो जा रहे हैं अभी करने वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस की फॉर्मूलेस। अभी हम उसकी इक्वेशंस बनाएंगे और इसमें भी देखा जाएगा बेटा, तो ये वाले क्या है, ये दोनों क्या थी, ये था, ये इस सेकंड के ऊपर ये वेलोसिटी थी, इस सेकंड के ऊपर ये वेलोसिटी थी, तो देयरफॉर ये क्या होंगे, दीज आर दी instantaneous velocities at this second, 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 and at 0 the instantaneous velocity is 0. Getting it? Screenshot लीजिए प्लीज
और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मूलेज। ओके बच्चा पार्टी, नेक्स्ट वी आर हैविंग द इक्वेशंस, द फॉर्मूलेज फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या गिवन है, क्या बात है जो होनी चाहिए, क्या कंडीशन है जो कि होनी ही चाहिए, वो ये है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती जा रही है। मींस फिक्स टाइम इंटरवल के बीच में जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है फिक्स्ड अमाउंट की। समझे, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और जो भी मैं टाइम स्लॉट ले रहा हूं, जो भी मैं टाइम का सेकंड्स ले रहा हूं, मीन्स 2 सेकंड ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं, 5 ले रहा हूं, वो मेरे पे डिपेंड है। वो जो भी मैं टाइम सेकंड्स का स्लॉट ले रहा हूं उसके अंदर जो वेलोसिटी का चेंज है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट। समझे बात कि वेलोसिटी उन सेकंड्स में हर बार इंक्रीज होती जा रही है बट फिक्स्ड अमाउंट में। ओके बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट फिक्स्ड अमाउंट में, जो हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली में। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में हम जो हमने चीज पढ़ी थी वही चीज हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वो थिंग्स हैं जो लगातार आपके +2 के एंड तक चलेंगी। और ये जो 3 इक्वेशंस है, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, सो प्लीज कंसंट्रेट हियर। और पूरे ध्यान से सुनना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि थिंग्स जो होगी हर बुक में अलग अलग तरीके से होगी, बट जो सबसे सिंपल और इजी तरीके से होगी वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, बोर्ड की ओर देखना ध्यान से। फर्स्ट है थिंक, जो कंडीशन चाहिए वो क्या है कि एक्सेलरेशन वो होनी चाहिए कांस्टेंट, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तभी ही हम ये तीनों के तीनों रिलेशंस जो है, तीनों के तीनों जो ये फॉर्मूले हैं ड्राइव कर पाएंगे। कौन कौन से फॉर्मूले बनाने हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बनाना है। कब, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, बॉडी इज अंडर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, मींस एक्सेलरेशन क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। हर सेकंड के बाद, हर जो भी मैं सेकंड का टाइम स्लॉट दूंगा उसके अंदर एक्सेलरेशन फिक्स्ड अमाउंट में रहनी चाहिए। ओके, सो थिंग्स जो बेटा सबसे पहले आ रही है वो है एक्सेलरेशन का जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था वो क्या था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो वही थिंग तो मैं लेकर चलूंगा। मैं क्या सोच रहा हूं कि बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, ये ओरिजिन है, ठीक है, वो चल रही है और मैं इतने टाइम इंटरवल को काउंट करूंगा इन तीनों ही इक्वेशंस के लिए। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही इक्वेशंस के लिए कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी भी चलेगी, कोई ना कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी चलेगी। देयरफॉर मैं जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं यहां पर नहीं ले रहा, मैं यहां पर ले रहा हूं। ओके, तो देखिए बेटा क्या हो रहा है, यहां से बॉडी स्टार्ट हुई, कोई टाइम t है जो कि 0 है जब मैं इस टाइम स्लॉट को काउंट करना शुरू कर रहा हूं। जब मैंने वो एक्सेलरेशन को देखा कि मैंने अब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंटली, लगातार कांस्टेंटली यहां से भी चल रही है, ठीक है, यहां से भी चल रही है, बट मैं इतने टाइम इंटरवल के ऊपर इक्वेशंस को लगातार लगाकर देखूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहां से होगा। अभी मैंने माना कि यहां पर मैंने टाइम स्लॉट जो मेरा टाइम इंटरवल था उसको मैंने स्टार्ट किया, काउंट करना शुरू किया, टाइम इक्वल्स टू 0 यहां से, और तब मैंने माना कि बॉडी कोई इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रही है, उसकी तब इनिशियल वेलोसिटी इट इज हैविंग एज u। ओके, सो आफ्टर कवरिंग अ टाइम t, तो उस टाइम के ऊपर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। ओके, सो देयरफॉर मैं एक्सेलरेशन काउंट करूंगा इतने टाइम स्लॉट के लिए। सो इतने टाइम स्लॉट के लिए मैं क्या करूंगा, जो ये फाइनल टाइम है मेरा और ये इनिशियल टाइम है, यहां से मैं काउंट कर रहा हूं, देयरफॉर मैं टाइम इक्वल्स टू 0 यहां से काउंट कर रहा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है t इक्वल्स टू 0, यहां से काउंट कर रहा हूं। सो देयरफॉर मेरा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या मैंने माना है, v। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। देयरफॉर फाइनल टाइम क्या है वहां पर, t इक्वल्स टू t, इनिशियल टाइम क्या है, 0। सो देयरफॉर इस इक्वेशंस को मैंने स्टार्ट किया, मैं काउंट कर रहा हूं, मैं इसको मानकर चलूंगा। देन वी आर हैविंग v माइनस यू अपॉन t माइनस 0। देयरफॉर पुटिंग द फाइनल, ये वाली v फाइनल की थी जो वैल्यू वो मैंने यहां पर फिल की, इनिशियल की यहां फिल की, और फाइनल जो टाइम था वो यहां पर फिल किया, और एक्सेलरेशन व्हाट वी आर हैविंग v इक्वल्स टू
u प्लस ए टी। और इसमें देखा जाए बेटा क्या कौन सा रिलेशन में बना रहा था, वेलोसिटी और टाइम के अंडर। सो देयरफॉर हमारे पास वेलोसिटी और टाइम ही तो है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है और कोई भी चीज नहीं है हमारे पास। देयरफॉर v जो हमने एक्वायर करना था यहां पर का, यहां जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या थी, v। देयरफॉर वी आर हैविंग अ v। इनिशियल वेलोसिटी जो क्या थी वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कब, अगर मैं ओरिजिन ही यहां से मान लूं कि वो जो ओरिजिन बॉडी स्टार्ट ही यहां से हुई है, तब t इक्वल्स टू 0 एंड वी आर हैविंग इनिशियल वेलोसिटी एज 0 बिकॉज बॉडी तब वहां से स्टार्ट होना शुरू की थी। देयरफॉर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो उसकी वैल्यू हो सकती है नहीं भी हो सकती है, डिपेंड है कि बॉडी यहां से अगर स्टार्ट हुई तो देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी उसके लिए 0 होगी। ठीक है, जब भी आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी ऐसी इक्वेशंस वाली, तो अब हमने इस बात के ऊपर गौर करना है बेटा कि तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई गिवन है उस टाइम के ऊपर जब हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस बात के ऊपर ध्यान रखना है हमने। तो देयरफॉर क्या हो रहा है यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू 0 पे ऊपर हमारे को कोई गिवन थी, वो क्या है u, फाइनल वेलोसिटी है v। देयरफॉर एट दैट टाइम वी आर हैविंग अ टाइम t इक्वल्स टू t। सो देयरफॉर यहां पर इनिशियल वेलोसिटी ले ली और यहां पर एक्सेलरेशन तो हमारे पास कांस्टेंट है, t भी हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज मूविंग, इट इज अ इंक्रीजिंग फैक्टर, ये लगातार इंक्रीज होता है। सो देयरफॉर टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो देयरफॉर हमारे पास जो बेटा जो ग्राफ बनेगा, इक्वेशन तो हमारे पास बन गई, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ कैसे है, देखिए ग्राफ, अगर उसको हमारे पास कोई t एट t इक्वल्स टू 0 वी आर हैविंग अ सम फिक्स इनिशियल वैल्यू, जब हम स्टार्ट करने लगे थे, जब हमने टाइम इंटरवल को स्टार्ट किया था, तब अगर उसकी कोई इनिशियल वैल्यू, देन वी आर हैविंग एट दैट टाइम इक्वल्स टू 0। यहां पर टाइम 0 है ना, यहां पर स्टार्ट किया था टाइम, देयरफॉर एट दैट टाइम टाइम इक्वल्स टू 0 and at that time we are having a some value of velocity, therefore we are having u here. Then as the time progress we are having an increase in velocity because it is a fixed quantity, it is also a fixed quantity। ये भी फिक्स होगा ना, ये भी फिक्स होगा, ये तो कोई ना कोई वैल्यू फिक्स हमारे पास थी, टाइम t इक्वल्स टू 0, ये भी हमारे पास कोई फिक्स है। therefore जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा v भी इंक्रीज होता जाएगा, we are having this, ये हमारे पास ग्राफ बना। और अगर हमारे पास एट टाइम इक्वल्स टू 0 कोई इनिशियल वैल्यू नहीं थी वेलोसिटी की, देयरफॉर ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और ऐसा प्रोग्रेस होगा। दैट इज नेक्स्ट बेटा हमारे पास कौन सा है, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बट हम यहां पर बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। देयरफॉर एज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी, देयरफॉर वी आर कंसीडरिंग व्हिच पॉइंट, वेलोसिटी। सो देयरफॉर यहां पर क्या आएगा बेटा, अभी स्टार्ट कैसे करेगा, अभी ध्यान से सोचना, यहां पर मैंने एवरेज वेलोसिटी क्यों लिया, एवरेज वेलोसिटी मैंने इसलिए लिया, देखो बेटा यहां से बॉडी स्टार्ट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ओके, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 यहां से बॉडी स्टार्ट हुई है और यहां से बॉडी आके चल रही है। देयरफॉर एट दिस पॉइंट वी आर हैविंग अ सम वैल्यू ऑफ velocity and at time t equals to 0 we are also having some value of velocity, therefore it is having a v। therefore यहां से मूव करते हुए यहां तक, जिसके ऊपर जिस टाइम इंटरवल के ऊपर मैं इस सभी इक्वेशंस को यूज कर रहा हूं उसी के ऊपर मैं लगाकर देखूंगा ना, तो therefore एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यहां तक की डिस्प्लेसमेंट, पूरी डिस्प्लेसमेंट, ओके, यहां तक की डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहां तक का टाइम अपॉन यहां तक का टाइम, समझे बात। सो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कि इस टाइम स्लॉट के अंदर, इस टाइम स्लॉट के अंदर वो किसी वेलोसिटी के साथ चलेगा। देखो मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्मली मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। देयरफॉर अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, देयरफॉर उस टाइम स्लॉट के अंदर कोई फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ थोड़ी बॉडी चलेगी। पिछले वाले केसेस में हमने ये बात पढ़ी थी बेटा कि एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई, देयरफॉर उस टाइम स्लॉट के अंदर वो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं था। अगर वो वहां पर नहीं था, देयरफॉर वो यूनिफॉर्म मोशन था। देयरफॉर उस
उस टाइम स्लॉट के अंदर तब वेलोसिटी क्या रहनी थी, फिक्स। बट यहां पर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। सो देयरफॉर यहां पर फिक्स वेलोसिटी थोड़ी ना रहेगी। एज द बॉडी इज प्रोग्रेसिंग, एज द बॉडी इज मूविंग अहेड, देयरफॉर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या, इंक्रीज होती जाएगी। देयरफॉर यहां पर मुझे क्या, कोई वेलोसिटी सिंपल v थोड़ी ना लेनी थी, हमें यहां पर क्या लेना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने यहां पर एवरेज वेलोसिटी क्यों लिया, तो समझे बात। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ गया, जहां पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। देयरफॉर अब हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी मींस इन दोनों के इस सभी एरिया की जो डिस्टेंस है हमारा, यहां से लेकर यहां तक, इसके अंदर की वेलोसिटी, तो वो क्या होगी, कुछ यहां पर वेलोसिटी होगी, कुछ यहां पर होगी, उसकी मैंने एवरेज ले ली। ओके, सो देयरफॉर वी आर हैविंग एट दिस पॉइंट वी आर हैविंग अ वेलोसिटी एज u व्हिच इज इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पर है फाइनल वेलोसिटी v, डिवाइड कर दिया 2, मैंने एवरेज ले ली। तो वो क्या हुआ, अभी यहां पर डिस्प्लेसमेंट ये सभी पॉइंट्स लिए, इसको मैंने फाइनल ले लिया, वही पिछले वाले फैक्टर सभी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं यहां पर। फाइनल देयरफॉर t इनिशियल क्या होगा 0, यहां से स्टार्ट किया था, वही सभी पॉइंट्स लिए, क्या हुआ यहां पर अकेला t रह गया, वो t यहां पर ऊपर चला गया, साथ में क्या है यहां पर u प्लस v, साथ में t है अपॉन 2 है। देयरफॉर यहां पर क्या हुआ, xf माइनस xi हुआ। तो देखा जाए xf माइनस xi मीन्स यहां की डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग द थिंग? इन दोनों के अंदर की डिस्प्लेसमेंट, xf माइनस xi मीन्स इन दोनों के अंदर का डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे, यहां तक आने का उसका जो पोजीशन थी वो क्या थी, xf, और यहां तक की पोजीशन है xi। देयरफॉर इन दोनों के अंदर का ये फाइनल वाली डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल वाली डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन है फाइनल वाली, ये इनिशियल वाली, तो टाइम स्लॉट के अंदर की डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, xf माइनस xi। सो उसको मैंने क्या लिख लिया, s, जो पिछली बार भी हमने पढ़ा था। ओके, तो देखो यहां पर मैंने लिख लिया s, और देखो अब हो क्या रहा है, मैंने क्या किया, यहां पर s लिख लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने v जो ये है, हमें पता था v की वैल्यू क्या थी। अभी ध्यान से बेटा सोचो, इक्वेशन जब आपने सॉल्व करनी होगी, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ जाए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन ड्राइव करने पेपर में आती है। तो हमारे पास एक फिक्स्ड फिनोमिना, एक फिक्स्ड फॉर्मूला, एक फिक्स्ड तरीका और एक फिक्स्ड मेथड होना चाहिए कि मैं कैसे उस इक्वेशंस को सॉल्व करूं, कैसे ड्राइव करूं। देखो ये वाली जो इक्वेशन बन गई, ये कैसे बनी, एक्सेलरेशन से बनी। और ये वाली इक्वेशन कैसे बनी, स्टार्ट किया मैंने एवरेज वेलोसिटी से, और इसके अंदर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा, कर ली। इसके अगले वाले में बताऊंगा फिर कैसे हो रहा है। अभी क्या हुआ, v की जगह मैंने फिक्स कर दी वैल्यू u प्लस ए टी, तो लिख दिया u प्लस ए टी। ओके, वी आर हैविंग u हियर एज प्रीवियसली, और v की जगह लिखा मैंने u प्लस ए टी। तो क्या किया जाए, अभी 2u हो गए, 2u साथ में t थी, t आ गया, और यहां पर क्या हुआ, a t स्क्वायर बाय 2, तो 2 के साथ 2 कैंसल हो गया, तो क्या रह क्या गया, ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बार बार दिमाग हिलाएगी, बार बार हर क्वेश्चन में आएगी। इसको हमने इसके साथ पक्का याराना बनाकर रखना है, क्योंकि ये चीजें बार बार इंप्लीमेंट होगी। तो क्या बना लगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें रिलेशन कौन सा था, पोजीशन और टाइम का। सो पोजीशन क्या आ गई, ये वाली आ गई। ये कैसी हुई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, दो पोजीशन का आपसी डिफरेंस। सो देयरफॉर पोजीशन आ गई, और साथ में क्या लाई है, टाइम लाई है साथ में। और यहां पर कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि ये साथ में वेलोसिटी क्यों आ गई, ये बेटा इसलिए आई क्योंकि ये वाली वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि इस बात को हमने यहां पर पढ़ा था कि एट दैट टाइम t equals to 0 we may have some value of velocity or we may not have. ओके, सो देयरफॉर यहां पर ये u की वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो देयरफॉर हम इसको, ये फाइनल थोड़ी ना, ये तो उस वक्त की वैल्यू है वेलोसिटी की जब मैंने टाइम को स्टार्ट करना शुरू किया था। सो देयरफॉर इट इज द इनिशियल वैल्यू, नॉट वी आर गेटिंग द फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो देयरफॉर हियर वी आर हैविंग
एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू अगर जीरो हो जाए, देयरफॉर वी आर हैविंग नो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन दिस इक्वेशन, सो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, देन वी आर हैविंग ओनली दिस थिंग। सो देयरफॉर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इनिशियल वैल्यू होगी वेलोसिटी की तो फिल कीजिए, नहीं है तो इसको जीरो कीजिए। तो आंसर में क्या लाइए, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ए इज कांस्टेंट, टी इज टाइम which we are having, and it keeps on increasing and increasing and increasing. So therefore s भी है, ut भी है, हाफ ए टी स्क्वायर भी है। सभी वैल्यूज यहाँ पर लिखी है, कौन कौन सी कांस्टेंट है, कौन सी क्या है। u की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है, जीरो भी हो सकती है, तो इक्वेशंस में फिल करके देखा जाए, क्योंकि स्क्वायर वाला फैक्टर है। स्क्वायर रेशियो वाली टर्म लगेगी, मींस थोड़ी सी टर्न अप लीनियरली मूव नहीं करेगा, साथ में है, डायरेक्टली है, सो उसकी तरफ टर्न होगा। कैसे होगा, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। अगर एक्स आई का मतलब क्या, अभी ध्यान से सुनना बेटा, एक्स आई का मतलब क्या है। अगर ये वाला जो एक्स आई मीन्स यहां का पॉइंट है, यहां का पॉइंट है, अगर मैं इनिशियल वाला पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर इनिशियल वाला पॉइंट मैं यहां पर ले रहा हूं, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एक्स आई यहां पर थी ना, एक्स आई तो यहां पर ही थे, ये देखिए। और अगर मैं टाइम इक्वल टू जीरो यहां पर ले रहा हूं, मतलब कि मैं यहां से ही अगर स्टार्टिंग कर रहा हूं, स्टार्टिंग, वी आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम दिस पॉइंट, देयरफॉर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, जो कि टी इक्वल टू जीरो के ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर एक्स आई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है ही नहीं, कुछ इनिशियल पोजीशन है ही नहीं, मींस जब मैंने टाइम को स्टार्ट किया तब जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कुछ भी नहीं की थी, वो अपने ओरिजिन पे ही थी। Therefore, as we are starting the time to be count, therefore at that time, if the body remains at its original position, therefore its initial displacement will be zero. Okay, so here if xi is zero, therefore we are starting from here. xi is zero means ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा और यहां से स्टार्ट होगा। So therefore xi is zero at t equals to zero. तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना बेटा जी कि xi की वैल्यू है कि नहीं। हमने ग्राफ कहां से स्टार्ट करना है, गेटिंग द थिंग। इफ नॉट देन प्लीज रिपीट दिस मच वीडियो अगेन। सो बेटा नेक्स्ट बेटा हम जो चलेंगे वो है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन पे। क्या बताया था, इसको इसके ऊपर अगर हमने पहुंचना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। ओके, इसकी इक्वेशन जो थी उसे यूज करना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर पहुंचना है तो फिर इसको यूज कीजिए, और इसको जब हम यहां पर यूज करेंगे तो इसके अंदर फिर से इसको यूज करिए। सो देयरफॉर इकट्ठा कीजिए सब कुछ। तो क्या करेंगे, अभी इसको स्टार्ट करना है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या किया जाए बेटा, ये इक्वेशन स्टार्ट की तो यहां पर टी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के अंदर रिलेशन है। टी को एलिमिनेट करना है, सो देयरफॉर टी को एलिमिनेट किया। कहां से किया, यहां से किया। कैसे किया, v माइनस यू अपॉन ए, वी आर हैविंग टी, सो टी की वैल्यू फिल की, यहां पर भी फिल की, कैलकुलेशंस की। कैसे की देख सकते हो, ठीक है, वरना बता देते हैं। s इक्वल्स टू यू वी आ गया, फिर से u स्क्वायर हो गया, साथ में a नीचे आ गया। यहां पर क्या हुआ, हाफ a है, t की वैल्यू फिल की थी, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u, ओके, 2uv, साथ में 2a था, 2a नीचे लिखा, स्क्वायर था, a स्क्वायर, साथ में एक यहां पर भी है, a के साथ एक गया, क्या रहा, नीचे ओनली u, a रह गया। और क्या बना अब बेटा, यहां पर भी है, यहां पर भी है, a कॉमन निकाल दिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहां पर क्या बनेगा, 2u बढ़ गया ना बेटा। अभी हम एलसीएम ले रहे हैं, नीचे एलसीएम लिया 2, ये 2 चला गया यहां पर, क्या बना 2uv, साथ में यहां पर भी u गया, 2 गया, साथ में u स्क्वायर हो गया, यहां पर v स्क्वायर है, u स्क्वायर है, माइनस 2uv है, और इसके साथ 1 ही रहेगा क्योंकि यहां पर क्या था, 1 था।
सो एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। कैलकुलेशन में कटिंग हो रही है कुछ, जी हाँ हो रही है। यहां पर हो गया ना था 2uv, यहां पर भी 2uv है, कैंसल आउट हो गया, क्या रह गया -2u², यहां पर u² है तो एक u² भी गया और क्या रह गया -2u² था, एक u² गया तो क्या रह गया -u², v² यहां पर है तो क्या बना, इसको उधर ले गए तो क्या हो गया 2as = v² - u²। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। We again to need remember again and again all these types of equations because we will have to solve the many problems in this equation, in this chapter. Okay, so here we are having 2as = v² - u², a constant है, जी हाँ constant है, s क्या है, displacement है, yes we are having in this relation displacement है, velocities भी है, initial भी है, final भी है। अगर initial velocity कुछ भी ना हुई तो क्या हो जाएगा बेटा जी, v² = 2as। हमारे पास प्रॉब्लम कैसी होगी उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे सॉल्व, तो बनेगी बात, तो क्या हो गया बेटा, ये थर्ड वाली इक्वेशन भी बन गई और चीजें हमारे पास सभी के सभी सॉल्व हो गई। और एक ग्राफ रह गया, वो क्या था, अंडर वीटी ग्राफ वी आर हैविंग अ एरिया एंड दैट एरिया इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। Okay, under VT graph we are having a area and that area is equals to displacement। वो वाली चीजें पढ़ लेना पिछली बार वाली और चीजें आगे जाकर यूज होंगी। ओके बेटा, लास्ट थिंग वी लेफ्ट दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अभी उसको करने से पहले बेटा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा और इसको हम सॉल्व करना क्या है, उन्होंने हमें बताया बेटा कि nth सेकंड में हमने पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो उसके लिए क्या करेंगे, n सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे और फिर n-1 तक की डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे, और ये x और ये n और n-1 क्या थे, ये टाइम थे कि यहां तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा, n सेकंड्स लगे, और यहां तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा, n-1 सेकंड्स लगे। सो देयरफॉर ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों के अंदर की, ये वाली जो इतनी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कौन से सेकंड में आई होगी, nth सेकंड में आई होगी। तो वही तो बात पता करनी थी कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, वो क्या हुई, n सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट और n-1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट, दोनों को माइनस कीजिए और आंसर पता कीजिए। तो ये सब थिंग्स थी जो हमने आज पढ़ी। होप सो, उम्मीद होगी कि आप सभी बच्चों को बेटा जी ये बातें समझ आई होगी। थोड़ी सी इस बात की भी आपको हैरानी होगी, बेटा जी बहुत औखा हो के हिंदी बोलनी पड़ रही है, पर फिर भी बच्चा जी आप सभी लोगों के लिए बोलनी पड़ रही है, क्योंकि आप लोगों के व्यूज ऐसे मिल रहे थे कि सर प्लीज थोड़ा हिंदी में भी इलेबोरेट करें थिंग्स को। सो देयरफॉर वी आर मूविंग फ्रॉम पंजाबी टू हिंदी जस्ट बिकॉज ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होगी, थोड़ी बहुत हिंदी मेरी कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा जरूर, ठीक है, बिकॉज इट इज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आई एम स्पीकिंग इन दिस हिंदी लैंग्वेज। ओके बेटा जी, सो अगर आप बच्चों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, जो जो थिंग्स हमने बताई होगी वो भी पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। सो प्लीज बेटा जी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।